Hello students, we are reading lesson 3 from gathering to growing food, okay, of history. So today we will read a new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be for several days, weeks, months, and in some cases years. When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. Okay, as grain had to be stored for both food and seed, people had to think of ways of storing it. In many areas, they began making large clay pots, or wove baskets or dug pits into the ground. Did you think hunter gatherers would have made any and used pots? Give reason for your answer. Here some question. Okay, here you see way in which grain was used as a seed, as a food, as a gift stored for food. Okay, यहाँ ग्रेन्स का यूज बता रहा है कि किस किस लिए किया जाता है, और आज भी किया जाता है बीज के रूप में, खाने के रूप में, किसी को गिफ्ट देने के रूप में सीड्स का यूज होता है। आज भी विलेज एरिया, रूरल एरियाज जो है वहां पर इसका यूज होता है, और खाना स्टोर करने के लिए। ठीक है, स्टोर के लिए तो रखते ही हैं लोग, है ना। नाउ स्टोरिंग Animals multiply naturally besides if they are looked after carefully. They provide milk, which is an important source of food and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? These questions you will do by yourself. Okay, you find answers, okay, of these questions. Now finding out about the first farmer and herder. Turn to map 2. You will notice a number of blue squares, each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present-day Kashmir, and in East and South India. To find out whether these sites were settlement of farmer and herder, scientists study evidence of plants and animals. Bones. One of the most exciting field finds includes remains of burnt grain. These may have been burnt accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. They can also identify the bones of different animals. Okay, now look at the table below to see where evidence of grain and bones of domesticated animals have been found. Here is the list. So, a new way of life, है ना, एक नया रास्ता जीवन का। ठीक है, अगर आप सीड को प्लांट करेंगे, ठीक है, लगाएंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि इसको उगने में कुछ समय लगता है। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, हो सकता है कुछ वीक लगे, कुछ डे लगे, कुछ मंथ लगे, या कुछ को ईयर्स भी लग सकते हैं। ठीक है, तो जब लोगों ने प्लांटिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को वहां लंबे समय तक रहना पड़ता रहा होगा, उसको वाटरिंग मतलब पानी देना पड़ता रहा होगा, उसकी देख रेख करनी पड़ती रही होगी, है ना, एनिमल्स और बर्ड से बचाने के लिए। उसके बाद जब ग्रेन, उनका जो अनाज था वो पक जाता रहा होगा, और उसके बाद वो उसको केयरफुली यूज करते रहे होंगे, मतलब एक जगह काफी लंबे समय रहते रहे होंगे। ठीक है, अब ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए वो क्या करते रहे होंगे। ठीक है, एक तो वो ग्रेन्स को फूड के रूप में, खाने के रूप में भी यूज करते रहे होंगे, और दूसरा नेक्स्ट टाइम बोने के लिए भी। ठीक, तो इसके लिए वो क्या करते थे, बड़े बड़े क्ले पॉट्स बनाते थे, है ना, या बास्केट बनाते थे, या तो फिर गड्ढा खोदकर ग्राउंड में उनमें अनाज रखते थे, ग्रेन्स रखते थे। ठीक है, नाउ स्टोरिंग
एनिमल्स को स्टोर कैसे करते थे वो? तो ये तो पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं, नेचुरली मल्टीप्लाई, मतलब बढ़ते जाते हैं, है ना। अब वहां अगर हम देखें तो ये हमको एनिमल्स क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से इंपॉर्टेंट सोर्स है खाने का, है ना, हमें मीट भी देते हैं ये, ठीक। और दूसरे वर्ड्स में अगर कहा जाए तो एनिमल रियरिंग है, मतलब पशुपालन जो है, एक प्रकार से क्या है, फूड को स्टोर करना ही है ना। अगर हम पशु पालते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, तो हमें मिल्क डेली मिलता है, ठीक है, कभी कभी मीट भी मिल जाता है उनसे हमें, है ना। तो ये स्टोरिंग फूड ही है। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर। तो फर्स्ट फार्मर और हर्डर जो है, जहां जहां आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि यहाँ यहाँ हंटर गैदरर्स रहते थे, ठीक है, यहाँ यहाँ हंटर गैदरर्स रहते थे, तो वहां पर ही पाए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट फार्मर और हर्डर, तो ये किस एरिया में पाया गया, नॉर्थ वेस्ट में पाया गया, ठीक है। और अभी अगर हम कहें तो प्रेजेंट डे है ये अपना कश्मीर के जो एरिया में है वहां पर, और ईस्ट और साउथ इंडिया में भी, ठीक, यहां पर पाए गए फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर, ठीक है। साइंटिस्ट को एविडेंस के रूप में एनिमल्स के बोन्स मिले हैं, कुछ पुराने प्लांट्स मिले हैं, है ना, और तो और उनको बर्न्ट ग्रेन मिले हैं, मतलब जले हुए अनाज, है ना, ये सारी चीजें मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पहले जो इस एरिया में जो लोग थे, सबसे पहले इसी एरिया में मिला उनको, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, कश्मीर का जो एरिया है, कश्मीर के नॉर्थ वेस्ट, मतलब कश्मीर से गुजरात तक का एरिया आप ले सकते हैं, ठीक है, तो उस एरिया में, है ना। और कुछ ईस्ट साइड भी मिला, कुछ साउथ इंडिया साइड भी मिला, ठीक है। तो अब जो बर्न्ट ग्रेन्स मिले, या तो वो एक्सीडेंटली हो सकते हैं, मतलब, ठीक है, अपने आप आग लग गई हो, या तो लगाई गई हो, ठीक है, जलाया गया हो ग्रेन्स को, है ना। तो वो सारे एविडेंस उनको उसी एरिया में मिले हैं, ठीक है, जहां से ये पता चलता है कि यहाँ पर लोग क्या करते थे, प्लांट ग्रो करते थे, एनिमल रियरिंग करते थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने उन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, और उससे पता क्या चला, है ना, कि बहुत सारा जो क्रॉप्स है वो ग्रो किया जाता था सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। और उनने ये भी आइडेंटिफाई किया कि वहां पर सिर्फ एक ही टाइप का एनिमल नहीं था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के बोन्स भी वहां पर मिले, ठीक है। अब यहाँ आप एक टेबल देख सकते हैं, सी ग्रेन एंड बोन्स, ये जो एविडेंस मिले हैं, कौन कौन से ग्रेन्स मिले हैं देखें, और बोन्स मिले हैं, वीट, बार्ले, शीप, गॉट, कैटल, इनके ग्रेन्स मिले हैं, और इनके बोन्स मिले हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़, जो कि अभी कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। नाउ राइस फ्रेगमेंटरी एनिमल्स बोन, है ना, ये कहाँ है अभी, कोलदीवा जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। नाउ राइस कैटल, है ना, तो ये कहाँ मिला है, महागारा, जो कि अभी उत्तर प्रदेश में है। वीट एंड लेंटिल, ये भी कहाँ मिले हैं, गुफक्राल, जो कि अभी कश्मीर में है, ओके। नाउ वीट एंड लेंटिल, डॉग कैटल, शीप, गॉट, बफेलो, ये सारी चीजें बुरजाहोम, जो कि अभी कश्मीर में है, ठीक है। वीट, ग्रीन ग्राम, हरे चने, बार्ले, बफेलो, ऑक्स, ठीक है, ये चिरांद, जो कि अभी बिहार में है, ठीक है। मिलेट, कैटल, सीप, गॉट, पिग, हलूर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, ओके। फिर ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, शीप, पिग, ये पियामपल्ली, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है। दीज आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। ये पुराने समय के, मतलब ये वो एरियाज हैं जहां पर ये सारी चीजें फाइंड की गई हैं एविडेंस के तौर पे, ठीक है।